The game, no. Said I'm too deep in the game, no. JTK. Said I'm too deep in it, too deep in the game, no. Said I'm too deep in the game. Said I'm too deep in the game. Yeah. I'm too deep in the game. I cannot complain. Oh, everyone out here the same. I ain't working for pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. I'm too deep in the game. I cannot complain. Oh, everyone out here the same. I ain't working for pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. Since I was a child, I knew that wasn't for me. Slaving away days to build up somebody's story. And I knew it since I was a kid. By the time that I would go and hit 21, I would have like many ones and zeros in my bank account. This what I would think about. And the deadline coming real soon. So I gotta go and put this work in, make moves. Right now, getting everyone in tune with the music. If you have a dream, then there is no point in losing. Faith inside yourself, faith inside your seed. Keep on watering the dirt and you will watch it breathe. Shout out JT, he was in my crib, producing with me back when I lived in the BX. Before I had a clue what I could even do. Now I'm too deep in the game. I cannot complain. Oh, everyone out here the same. I ain't working for pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. I'm too deep in the game. I cannot complain. Oh, everyone out here the same. I ain't working for pay. Entrepreneur, I was a seed inside manure. Yeah, if only life wasn't short. I knew when I was a youngin' the world was bright like a torch, until it ripened while the universal cycle contorts. I feel that I was here for guidance and enlightened support, but the evidence indicted had us divided in court. I speak my truth to the youth and you only type at the source. I took a stab from fighting a knife and the spike is a chords, but I don't need no Vicodins, I just need life to come forth. So I keep going, I keep pushing towards making music, looking forward. Just before I go out and tour and make a good performance, I'm absorbing every single lesson that I learned. It's a blessing and a curse. I'm a master of my worst from chilling again. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप सारे। सो गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की ट्रेनिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि आज काफ़ी सारे दोस्तों की ज़िंदगी बदलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के आज यहाँ पर डिसीजन बनने वाले हैं कि हाँ, हमने आज एक थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी को देखा था, और आज उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लोगों के आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनने वाले हैं। सो मैं चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये जो आज का वेबिनार होने वाला है ना, ये सारे के सारे मेंटली और फिजिकली यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे ना जो फिजिकली तो होंगे बट मेंटली कहीं और होंगे, है ना। तो मैं उन सभी को एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सारे फिजिकली और मेंटली यहाँ पर हों, क्योंकि तभी मैं अपनी नॉलेज को, जो मैंने पिछले 5.25 साल के अंदर सीखा है, कमाया है, वो सारा का सारा आपके अंदर डिलीवर कर पाऊँ। तो दोस्तों, एक्साइटमेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा पीक पे होनी चाहिए, तभी हम जा करके कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, राइट डिसीजंस ले सकते हैं। और आप सभी को पता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल राइट है, राइट टाइम है, राइट एज है आप सभी की, है ना। राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है, और आप राइट हाथों के अंदर हैं। सो आप आज एक बहुत बड़े लेवल का डिसीजन लेकर के निकलने वाले हैं दोस्तों। सो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो सेशन रहने वाला है वो आप लोगों का लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर अपने लेवल को ग्रो कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया, मैं एक जीरो से हीरो कैसे बना,
एक छोटी सी फैमिली से मैं उठा था, मैं कैसे एक छोटी सी एज के अंदर मिलीनियर बन चुका हूँ, है ना। एक छोटी सी वीडियो के साथ स्टार्टअप करेंगे। मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, माई सेल्फ जसप्रीत सिंह, आप सभी को शायद मेरे बारे में पता होगा, और जैसे कि आपके सीनियर्स ने आपको बता रखा होगा मेरे बारे में, है ना, कि हमारे सीनियर हैं जसप्रीत सर, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे बारे में कुछ बोले, मुझे सिर्फ इतना है कि अगर मेरे बारे में कोई बता रहा है ना, कोई मेरे बारे में अगर कुछ बता रहा है, तो अगर उस चीज को सुन के सामने वाले बंदे की लाइफ में कुछ फर्क आ जाए ना, सामने वाली लाइफ के अंदर कुछ भी चेंज आ जाए ना, तो मुझे उस चीज से ज्यादा बहुत खुशी होती है ना। तो दोस्तों, आज से 5.25 साल पहले मैंने बिजनेस को शुरू किया था। अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता था, और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला मैं एक स्टूडेंट था। घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बेकार थी, छोटे छोटे खर्चों के लिए हमारे घर पे लड़ाइयाँ होती थी। एंड बट एक चीज हमेशा मुझे समझ में आ चुकी थी, जब हमारे घर में छोटी 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 लड़ाइयाँ भी होती थी ना, तो उस टाइम पे ना मुझे सिर्फ एक ही चीज की अपने कानों में गूंज सुनाई देती थी कि यार, अगर हमारे घर में लड़ाई हो रही है ना, तो सिर्फ एक चीज की वजह से हो रही है, वो है मनी, वो है पैसा। मेरे फादर मदर अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही मेन रीजन था, पैसा, है ना। तो वो मेरे कानों में वो गूंज हर टाइम जाती रहती थी। एंड मुझे ऐसा था कि यार, मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट देखूं, कुछ ऐसा सिस्टम देखूं, कोई ऐसा मेरे पास अपॉर्चुनिटी हो जिसके साथ मैं ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूं, है ना। और आप सभी को पता है कि 5.25 साल पहले मैंने इस बिजनेस को देखा था, इंट्रोड्यूस हुआ था इस बिजनेस के साथ। जैसे ही मेरे दोस्त काफी सारे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़े दिन पहले इस बिजनेस को देखा होगा, या आज देखा होगा, या हफ्ते पहले देखा होगा, या महीना 6 महीने पहले देखा होगा, है ना। तो मैंने 5.5 साल पहले इस बिजनेस को देखा था। मैंने कभी भगवान से पैसा नहीं मांगा, मैंने कभी भगवान से घर नहीं मांगा, कभी गाड़ी नहीं मांगी। मैंने सिर्फ क्या मांगा दोस्तों, मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी मांगी, कि मुझे लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिसके साथ मैं जो मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको मैं ठीक कर पाऊँ। तो आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, सारी की सारी जितने भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी कवर हो चुकी हैं, बिकॉज मैंने आज से 5.25 साल पहले एक डिसीजन लिया था यार, लाइफ में कुछ करने का, है ना। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप सभी को इतनी क्लैरिटी होगी यार, जॉब करके, सभी को इतनी क्लैरिटी होगी, जॉब करके आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने खर्चों को, है ना, चला सकते हो। बट अगर आपको अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है ना, तो आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपके सपने पूरे हो सके, है ना। तो जॉब के अंदर क्या करते हैं, हम अपने बॉस के सपने पूरे करते हैं, बिजनेस के अंदर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये बात को हमेशा समझ के रखना दोस्तों। जॉब के अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने बॉस के लिए, है ना। जॉब के अंदर हम क्या करते हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, बट अपने नहीं, अपने बॉस के। बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और बिजनेस करने के लिए मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कोई लाखों नहीं मांगने, कोई करोड़ों नहीं मांगने, जस्ट आपका यहाँ पे आधे पौने घंटे का मैं यहाँ पे समा मांगूंगा, ठीक है, 45 मिनट का समा मांगूंगा, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी कर दूंगा कि यार, ये बिजनेस आप लोगों के लिए ही बना है। तो आपको मेंटली और फिजिकली यहाँ पर रहना चाहिए इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टार्टअप कैसे करना है। एक चीज मैं स्टार्टिंग के अंदर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कहते हैं बड़े बिजनेस के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़े आइडिया की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, मैंने क्या बोला है, कहते हैं बड़े बिजनेस के लिए बड़े पैसे की नहीं, बड़े आइडिया से बिजनेस बढ़ता है। तो ये आज मेरे पास ऐसी ऐसी आइडियाज हैं, आज मैं कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा, बट जो मेरे दोस्त असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, उनको नेक्स्ट लेवल की मेंटोरशिप मैं पर्सनली देता हूं, कि मेरे सीक्रेट क्या हैं सक्सेस के। मैंने अपनी इनकम जो मेरी आई थी सिर्फ और सिर्फ 640 की आई थी, आज इतनी ज्यादा कैसे हो सकती, आज इतनी ज्यादा कैसे हो चुकी है ना। तो वो सीक्रेट जो है मेरी सक्सेस के, मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप में दूंगा। बट आज जो आधा पौना घंटा हम यहाँ पे बैठने वाले हैं दोस्तों, कोई भी काम अगर आपको है तो वो सारे के सारे छोड़ दो, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, है ना। अपने फ्यूचर से ज्यादा कोई भी ज्यादा जरूरी नहीं है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का फोन है, चाहे आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं, चाहे दोस्त बुला रहा है, चाहे आपकी वेब सीरीज है, चाहे आपने कोई पिज्जा ऑर्डर कर रखा है या बर्गर ऑर्डर कर रखा है, वो सारे के सारे भूल जाओ अगले 40 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि आप किस कैटेगरी में आने वाले हो। जॉब कैटेगरी में आना चाहते हो तो 80% दुनिया, 90% दुनिया जॉब कर रही है,
बट अगर आप बिजनेस कैटेगरी में आना चाहते हो तो आज आपको यहाँ पे सीरियस होकर बैठना पड़ेगा। आज आपकी लाइफ चेंजिंग डे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और दोस्तों, मैं सिर्फ आपको आज इतना ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर सीरियस होंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया, और जितनी जल्दी हो पाएंगे ना उतना बेटर है। क्योंकि मैं जब 19 साल का था ना, मैंने 19 साल की एज के अंदर मैं अपनी लाइफ के लेके, मैं अपने गोल्स को लेके, मैं अपने एम्स को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके तब बहुत ज्यादा सीरियस था। बिकॉज मुझे पता था मेरे घर में एक ही चीज की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं, वो सिर्फ पैसा है। तो मैं जॉब करता था, जॉब करते करते मुझे पता लग गया था कि हाँ यार, जॉब के साथ सिर्फ और सिर्फ हम अपने घर के खर्चे चला सकते हैं, बट अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अगर आपको छोटी मोटी गाड़ी भी चाहिए तो आप जॉब से नहीं ले सकते। ये आने वाले 10 साल के बाद आपको पता लग जाएगा। अगर आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी 10 साल के बाद एक छोटी सी गाड़ी लेने का डिसीजन बनता है। बट मैं अगर अपनी बात करूं ना दोस्तों, 21 साल की एज में 9.5 लाख रुपए की i20 लेके आ गया था। आप सभी को पता होगा, 21 साल की एज के अंदर 9 लाख रुपए की i20, 23 साल की एज के अंदर 50 लाख की मर्सिडीज, 24 साल की एज के अंदर फॉर्च्यूनर 35 लाख रुपए की, है ना। और 25 साल की एज के अंदर 1.25 करोड़ का फॉरएवर विला मैं बना रहा हूं, जो पूरा आधा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो कंप्लीट होने वाला है। और लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, मैंने खुद की गाड़ी, वैसे ही नॉर्मली मैंने गाड़ी बाई करी है, छोटी गाड़ी बाई करी है, वो कैश मैंने बाई करी है, जिसका नाम है ऑरा, है ना। तो अंडरस्टैंड करके देखिए दोस्तों कि इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स इंटरनेशनली नहीं, मैंने बताया कि मैं कहाँ कहाँ के घूम करके आया हूँ, कंपनी से फ्री स्पॉन्सर ट्रिप मैं लेकर के आया हूँ। मैं क्यों इतना ज्यादा सक्सेस हो चुका हूँ, मेरी टीम इतनी ज्यादा क्यों कामयाब है? क्योंकि हम सारे के सारे अपनी लाइफ में सीरियस हैं। जितने मेरे दोस्त मेरी बात को सुन रहे हैं, जो नए दोस्त हैं, दोस्तों, आपको कोई भी आपका दोस्त, मित्र, प्यारा, घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, कोई नहीं बताएगा सीक्रेट्स क्या होते हैं लाइफ में कामयाब होने के। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा टीचर बता देगी, बट मुझे बता दीजिए कौन से एग्जाम के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा का एग्जाम लिया जाता है। चाहे आपने इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है ना, उस पेपर में, उस एग्जाम के अंदर, है ना, कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं होता। बस वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें जो पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल स्टडीज होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिलियनियर्स क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो अपनी लाइफ में इतने कामयाब क्यों हैं। आप कोई भी लाइफ में अगर कामयाब इंसान देखा है ना दोस्तों, कोई भी बंदा, आप किसी का भी नाम एग्जाम्पल ढूंढ के देखिए, लेजेंड का नाम ढूंढ के देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वो पहले ही से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, वो भी जीरो से ही उठा था, आज वो मिलेनियर, वो बिलियनियर बन चुके हैं। वो इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकल स्टडी की बजाय प्रैक्टिकल स्टडीज करी है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने रखी अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ, किस तरीके से नेटवर्क की पावर होती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है, नेटवर्क क्रिएशंस क्या होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। हमें सिर्फ और सिर्फ फीसिस के लिए यूज किया जाता है आज के समय में। अभी देख लेना, अभी 1-1.5 महीना हो चुका है कोरोना की सेकंड वेव को खत्म हुए। अभी अगस्त के अंदर ना थर्ड वेव शुरू होने वाली है कोरोना की। क्यों होने वाली है? क्योंकि ये 2 महीने, 2.5 महीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस को ओपन कर दिया, स्कूल्स को ओपन कर दिया, फीसिस को लेने के लिए एडमिशन ओपन कर दी, फीस लेना शुरू कर दिया। तो एजुकेशन के नाम पे वो सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। एजुकेशन उस लेवल की हमें नहीं मिल रही है जो हम आपको एजुकेशन देने वाले हैं। एक्चुअल के अंदर मैं कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ, जो बिलियनियर्स क्या बोलते हैं, उनकी सोच क्या बोलती है, वो बिलियनियर्स कैसे बने। मैंने फेलियर्स की स्टडीज की है कि बंदा फेल कैसे होता है। एक्चुअल के अंदर मैं सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ता, जितनी ज्यादा फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूँ। इसी वजह से आज मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ मेरे भगवान का, उस अल्लाह का, उस परमात्मा का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और मैं थैंक्स करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी का जो रेक्स सर ने, है ना, इस सिस्टम को आज से 42-44 साल पहले बनाया था, है ना। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। आज की ट्रेनिंग मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ अपनी वीडियोस आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये बंदा तो पहले से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था ना। तो मैं आपके सामने कुछ वीडियोस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी लाइफ की जर्नी थी, मेरी लाइफ स्टोरी है ना, जो मैं आपके सामने आज क्लियर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग। मेरी जो ये लाइफ जर्नी की ट्रेनिंग है, सक्सेस स्टोरी है ना, ये शायद काफी लोगों को इंस्पायर करेगी। आज से जब मैंने 5.25 साल पहले शुरू किया था तो मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे,
मेरे पास एक अच्छा फोन भी नहीं होता था। मैं अपने फटे हुए जूतों के अंदर ऑफिस में जाया करता था। लिटरली मेरे पीछे भगवान की फोटो लगी हुई है, मेरे गुरुजी की फोटो लगी हुई है, मैं इनके सामने बैठ के झूठ नहीं बोल सकता। लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सोच समझ के मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि जब मैं ऑफिस में जाया करता था तो मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, मेरे पास ऑफिस जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं लिफ्ट मांग के जाया करता था, मेरे जूतों के नीचे से वो जो पतामे होते हैं वो फटे हुए होते थे, है ना। बट फिर भी मैंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। 1.5-2 साल मैंने प्रॉपर मेहनत करी है कॉन्टिन्यूसली। मेरे को याद है वो दिन जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया था, लोग मेरे पे हंसना शुरू हो चुके थे, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर दिया था, है ना। आपके दोस्तों ने, आपके मित्रों ने, आपके घर वालों ने शायद आपको बुरा भला बोलना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, बेइज्जती, इंसल्ट उसी इंसान की होती है जो कुछ करने जाता है, कुछ बड़ा सोचता है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि अगर भेड़ चाल में चलते रहोगे तो कोई भी आपको देखेगा नहीं, अगर आप अलग दिशा में जाओगे तो दुनिया पहले आपको ताने मारेगी, फिर आपको सल्यूट मारेगी। ये आपके ऊपर है दोस्तों। आपने पहले ताने मरवा के, है ना, उसके बाद आपको लोग वही सल्यूट मारेंगे कि हाँ यार, इस बंदे की स्ट्रगल मैंने देखी है, मेरी आज सक्सेस अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है ना। अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि बट मैंने अपनी स्ट्रगल को खुद को देखा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते थे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे जूते फटे होते थे, मेरे कपड़े, मेरे इतने अच्छे मेरे पास कपड़े नहीं थे कि मैं अच्छे कपड़े पहन के कहीं ऑफिस में जा पाऊँ। बट फिर भी मेरे पास एक होप थी, मेरे पास एक आस थी कि कभी ना कभी मैं मैनेजर बनूंगा, कभी ना कभी मेरे पास भी लाखों रुपए की इनकम होगी, कभी ना कभी मेरे पास भी अपनी ड्रीम कार्स होंगी, अपना ड्रीम विला होगा। तो वो होप के साथ, वही आज के साथ मैं लगा रहा। और आज 5.25 साल के अंदर मैं अपने इस 5.25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुका हूं। शायद आपको विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हो रहा है वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा दोस्तों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, आप करोगे, मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाने के लिए आया, मैं आपको एक एक प्रूफ दिखा के जाऊंगा कि हाँ मेरे पास 2.5 करोड़ आया, फॉरएवर ने मुझे दिया। इस छोटी सी एज के अंदर कोई ऐसा इंसान दिखा दो 21 साल की एज के अंदर 9 लाख रुपए की i20, 23 साल के अंदर 50 लाख की मर्सिडीज, 24 साल के अंदर फॉर्च्यूनर, और 1.25 करोड़ का 25 साल के अंदर फॉरएवर विला बना रहा हूँ। आज के टाइम पे आप 25 साल के एक स्टूडेंट को देखना जाकर के, वो रिज्यूम लेकर के मार्केट में घूम रहा है कि उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए 10-15-20 हजार रुपए की, वो 20 हजार की नौकरी 40 हजार की कब होगी दोस्तों? सोचने की बात है, सीरियस होने की बात है। मेरा ब्रदर मेरे से बड़ा है, मुझे आज भी एक चीज हमेशा बोलता है, कहते जसप्रीत, कभी भी जितना मर्जी लाइफ में कामयाब हो जाइयो, बट अपने कभी भी गोल्स मत भूलना, अपने एम्स मत भूलना कि तेरे लाइफ में गोल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं। तो दोस्तों, मैं भी आपको यही वर्डिंग बोलना चाहता हूँ, ये अनसीरियसनेस छोड़ दो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। अगर आपको कामयाब होने की खुजली उठी है तो वो खुजली आप ही मिटाओगे। अगर आपको कामयाब होना है, ये कोई आपका दोस्त, मित्र, प्यारा, घर वाला, रिलेटिव्स, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो वो ड्रीम्स सिर्फ आप ही पूरे कर पाओगे, कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपके ड्रीम्स को पूरा कर पाए। अगर आपके घर में पैसे की कमी है तो वो कमी को सिर्फ आप पूरा करोगे। अगर आपके घर में एक गाड़ी की कमी है तो उस कमी को आप पूरा करोगे। अगर आपके घर में को हेल्थ की कमी है तो उस कमी को आप पूरा करोगे। अगर आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स की लाइफ में टाइम की कमी है तो उसको आप पूरा करोगे, आपका दोस्त नहीं पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। मेरे सपने थे, मैंने पूरा करा विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है दोस्तों। शायद अगर आप समझदार हो तो आप समझदारी दिखा सकते हैं इस चीज को लेके। ठीक है ना, भगवान ने सभी को समझदार बना के भेजा है, सभी को, बट समझदारी दिखाएगा कोई कोई। और जब मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, कुछ पिक्चर्स आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई जाएंगी और वो वीडियोस के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार, लिटरली बंदा जो काम करता है वो लाइफ में सक्सेस भी होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आज की जो ट्रेनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा, फिर एएस क्लैरिटी पे जाऊंगा। 10 मिनट यहाँ पर लगने वाले हैं हमें, उसके बाद अगले 20 मिनट के अंदर आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने किस तरीके का डिसीजन लेना है। चॉइस इज योर्स। आफ्टर 20-30 मिनट्स आपकी लाइफ का, आपका डिसीजन होगा। कोई भी आपको फोर्स नहीं करने वाला, क्योंकि किसी के आने से, किसी के जाने से किसी का बिजनेस नहीं रुकता। इस बात को याद रखना, समझ रहे हो?
किसी के आने से या किसी के जाने से किसी का कोई काम नहीं रुकता। चाहे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, कोई भी है ना, कोई एक दूसरे को छोड़ देते हैं फिर भी वो बहुत आराम से जीते हैं, ठीक है ना। चाहे आप जितना मर्जी उसको प्यार करो, जो भी करो, ठीक है ना, वो फिर भी अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन हो जाता है। वो तो दिल के रिश्ते होते हैं, अंडरस्टैंड करें इस चीज को। बट यहाँ पे तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी का कोई कुछ नहीं रुकने वाला। बस हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कामयाबी सिर्फ आपके हाथ में है कि आपको डिसीजन कैसा लेना है। सो आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो मेरी लाइफ की जर्नी है दोस्तों। मैंने कैसे फटे हुए कपड़ों में, सॉरी, फटे हुए जूतों में अपनी पास्ट को बिताया, बट आज अपनी लाइफ को लिटरली बता रहा हूँ, आज अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है ना, इतना पैसा पड़ा, अगर मैं दिखाऊंगा आपके दिमाग खुल जाएंगे, क्योंकि ये जो गैजेट है ना सारा कुछ दिखा देता है। समझ के देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। आज मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मेरे को अगर सिंगापुर का ट्रिप लेना, दुबई जाना है, कनाडा जाना है, तो मैं ऑन द स्पॉट मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर ईगो नहीं है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है इस चीज को लेके कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है। बट मैं आपको जस्ट इतनी सी रियलाइज कराना चाहता हूँ कि अगर जसप्रीत कर सकता है ना दोस्तों, तो मेरे को यहाँ पे 400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो 400 से ज्यादा लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन को लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलीनियर बन सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको दिखाऊंगा, अपनी इनकम दिखाऊंगा, चेक्स दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। बट उससे पहले अपनी पास्ट को दिखाना चाहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए, बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए, बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदी आ, डोर देख के हिक लोकां दी रड़दी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ, करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, हो गोके दुध ते मखना मखनी चौकी नहीं हुंदी। हो चोटी ना टकरा के बदली वरदी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ, तुणका तुणका करके गुड्डी। हक हथे आउणा जे तू अपना, अटके तां पल्ला नहीं ओ सरना। इन्हां हत्थां नाल लिख पागे अपने, दसां नौहां दी कमाई सिख करना। हक हथे आउणा जे तू अपना, अटके तां पल्ला नहीं ओ सरना। इन्हां हत्थां नाल लिख पागे अपने। दोस्तों इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। मेरे पास पैसे नहीं होते थे ऑफिस जाने के लिए, मेरे पास अपना बाइक नहीं होता था, बट फिर भी एक लाइफ के अंदर ना एक फोकस था, एक गोल था कि यार जो मर्जी है, जितनी मर्जी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ जाए, बट लाइफ में कामयाब होना है। अगर वही आपके अंदर डेडिकेशन है, वही आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, वही आप पैशनेट हो मेरी तरह, मेरी टीम की तरह, तो आपकी लाइफ बहुत प्यारी होने वाली है और सक्सेस वेट कर रही है आपका, अगर आप डिटर्मिनेशन वाले इंसान हो तो तेल नहीं होता था बाइकों में, फिर भी वहां पर पहुंचना, वहां पर जाना, ऑफिस में जाकर के काम करना। बट अंडरस्टैंड करें दोस्तों, आज कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में सारी की सारी ट्रेनिंग्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। सोचिए एक बार कितना इजी हो चुका है आप सभी के लिए। कमाई सिख करना, चक कलम ते लिख इतिहास, तू छट लिखनी आए तुक बंदियां। पैंदा अपने मुकद्दरां ना पढ़ना, सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां।
ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾ ਪਿੜਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹੀ ਪਿਲੁੱਟੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲੋ ਟੈਮ ਨੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੀ ਤੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਦੇਖ। दोस्तों ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था विद इन 1 ईयर, 1 साल पूरा मेहनत करने के बाद, पूरी 1 साल मुझे लगा था। अगर आपको लग रहा है कि ये लॉटरी सिस्टम है ना, कि रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अभी के अभी इस ट्रेनिंग को छोड़ के जा सकते हो। ये लॉटरी सिस्टम या कोई स्कैम नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होने वाली हैं। तो 1 साल के अंदर मैनेजर मैं बना था। शायद आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर बताया गया होगा, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। तो मैनेजर लेवल पे 60,000 से ज्यादा इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि 1 साल के बाद जो मेरी जो लाइफ थी, मेरा जो पास्ट था, धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था, है ना। इसके बाद मेरी लाइफ में मैंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। ਤਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਦੇਖੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਨਾ ਏ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਲੈਣੀ ਏ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਮੈਂ किस्मत लैनी है गुलाम कर मैं माड़ा टाइम फिर दूरों दूरों चाकू सारा जग जित लेना है मैं वेख लई फिर कदमां च। गाइस दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, एक बारी लिटरली एक बारी अपनी आईज शायद क्लोज कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। एक बार इमेजिन करके देखिए, विजुअलाइज करके देखिए कि यहाँ पर मैं नहीं, आप और आपके पेरेंट्स खड़े हैं इस गाड़ी के अंदर। जब मैंने अपने घर वालों को सिर्फ 21 साल की एज के अंदर ये गाड़ी गिफ्ट करी थी ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरी दुनिया का, मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन था। जिस चीज की वजह से मैं काम कर रहा था वो सिर्फ 1 साल 6 महीने के अंदर मैंने वो अपने घर वालों को गिफ्ट कर दी थी। 1 साल 6 महीने काम करके मैंने वो चीज अपने घर वालों को गिफ्ट करी थी जो एक नॉर्मल एवरेज पीपल जो नौकरी कर रहा है 15-15, 20-20 साल नौकरी करने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं गिफ्ट कर पाता। तो दोस्तों, ये मेरी लाइफ की, लिटरली बता रहा हूँ, ये गाड़ी को बाय करने के बाद मैं और मेरी फैमिली इतने ज़्यादा खुश थे। मेरी पूरी की पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर वालों को बड़े बड़े गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री। शक करना है, शक करिए, विश्वास करना है, विश्वास करिए, आपके ऊपर है, क्योंकि इससे ज्यादा दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत कुछ दिखाऊंगा बट लास्ट में मेरी वर्डिंग फिर से यही रहेगी कि इससे ज्यादा कुछ और नहीं है दोस्तों दिखाने के लिए या ट्रस्ट दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। बेबे बापू दे सारा जग जित लेना है मैं वेख लई फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। ਸੌਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਡਰ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨਾ
ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਡੀਕਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਡੀਕਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਓ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ 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 ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੋਰਨ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ गाइस आपने शायद देखा होगा आज की ये छोटी सी वीडियो को, है ना? क्या इसमें कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा? मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड कराइए, मुझे एक चीज़ बताइए, अपने आप से पूछिए क्या आपको ये रियल स्ट्रगल लगी या नहीं लगी? क्या आपको लगा? मुझे रेज हैंड चाहिए आप सभी के। क्या रेज हैंड कर सकते हैं यहाँ पे? वाह, 70, 80, 90 लोगों से 100 लोगों ने 100 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे रेज हैंड किए हैं और उनको पूरा ये विश्वास है 120 से क्रॉस हो चुका है, 110 से। गाइस अंडरस्टैंड करें, मैंने कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करी, मैंने जस्ट 1 साल स्ट्रगल करी और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में सीरियस हो जाएं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके साथ आपकी लाइफ बदल सकती है डेफिनेटली। ठीक है, मैंने आपको अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है, बाद में दिखाऊंगा, है ना? जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है आज का, वो मैं आज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। मैं अपने फ़ोन में अपने इस चीज़ को अब कनेक्ट करना चाहता हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और वीडियो दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देख लीजिए, छोटा सा मेरा घर था, ये नहीं, होल्ड कीजिए एक सेकंड। ਹੱਡਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ ਸੁਣੂਗਾ ਖੜਾਕਾ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟਿਆ ਚ ਗਿੱਲ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ ਹੋ ਬਾਜ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਲਈ ਨੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਰੇ ਵਾਲਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਯੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਲਾਏ ਜੜਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਲਾਏ ਜੜਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਲਾਏ ਜੜਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਅੱਖੋਂ ਹੰਝੂ ਚੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣੋ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਫੇਮ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਐ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ हाँ जी गाइस, सो
मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। तो अभी लेटेस्ट एक और गाड़ी लेकर के आया हूँ ना। एंड मैंने अपनी डायरी में लिख दिया दोस्तों कि जब मेरा ये विला कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन विला कंप्लीट होने के बाद विद इन 1 ईयर, मतलब 2022 के एंड तक मैं एक और ऐसी गाड़ी लेके आने वाला हूँ जो आप ये समझ लो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी नहीं होगी। जिस डिस्ट्रिक्ट पटियाला डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पटियाला के साथ ही मेरा शहर है राजपुरा। तो आप ये समझ लो कि 2022 के एंड तक मैंने लिख दिया अपनी डायरी में कि मैं एक ऐसी गाड़ी लेके आऊँगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने वाली दोस्तों। तो मैं ये आपके साथ वादा करता हूँ, ये डेफिनेटली मैं और मेरी टीम्स भी बड़ी जल्दी जल्दी अचीव कर रही हैं। एक बड़ी जल्दी इस साल के अंदर लग्जरी गाड़ी हमारी टीम के अंदर आने वाली है। तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि कौन ले रहा है, बट लग्जूरियस कार आप सभी को पता है कि कौन सी होती है, BMW, ऑडीज, है ना, मर्सिडीज, इंडेवर, फॉर्चुनर, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ इस साल के अंदर 2 से 3 हमारी टीम के अंदर और आने वाली हैं। और वो भी छोटे छोटे से मासूम से बच्चे, है ना, 25-25 साल के यहाँ से अर्न करेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी छोटा सा मासूम सा बच्चा हूँ। एंड 26 साल की एज में मैं एक ऐसा धमाका करूंगा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं किसी ने किया, अपने दम पे। हाँ, लोगों के पास गाड़ियां होंगी, बट अपने खुद के दम पे कमाई हुई गाड़ी शायद ही किसी के पास होगी, जो मैं गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। राइट। सो ये मर्सिडीज थी, उसके बाद मैंने इसको सेल करने के बाद मैंने फिर फॉर्चुनर ली। ठीक है, उसके बाद ये अपना ऑरा ली। फिर मैंने घर शुरू किया। अब एक ऐसी गाड़ी लेने वाला हूँ, शायद लोग सोच भी नहीं पाएंगे, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा उस गाड़ी का नाम। ठीक है, बट आज की जो ट्रेनिंग का जो मेन मोटिव है मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। राइट। अभी मैं कैमरा के साथ, मतलब मोबाइल के साथ आपको ट्रेनिंग दूंगा कि डायरी पेन पे आपको समझाऊंगा एक प्रॉपर वे से। कोई काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं कि मुझे ऐसा समझ नहीं आया, ऐसे है वैसे है, तो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है। सो मैं मोबाइल के थ्रू अब आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी गाइस, शायद आपको मेरी प्रॉपर यहाँ पे वॉइस क्लियर होगी, मुझे पता है, मैंने ये मैकबुक के अंदर लगा दी है। तो आज जो ट्रेनिंग है दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर वे के अंदर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनने वाला है सबसे पहले। ठीक है ना दोस्तों, आज हमारा एक प्रॉपर क्या बनने वाला है, एक डिसीजन बनने वाला है। जस्ट एक सेकंड होल्ड करें।
सो गाइज आज शायद आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर अभी आ रही होगी ना, वीडियो आ रही होगी। सो दोस्तों, एक लाइफ के अंदर मुझे लगता है कि हर बंदे को एक डिसीजन मेकर होना चाहिए ना। मतलब डिसीजन मेकर क्यों बोल रहा हूँ, शायद मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ इस डिसीजन से मैं स्टार्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ना लिटरली बहुत ज्यादा टाइम एक रोड के ऊपर ना एक ना कुत्ता मरा हुआ देखा होगा, है ना। आप शायद ज्यादातर रोड के ऊपर कोई और जानवर हमें बहुत कम दिखते हैं, जैसे कोई गाय होगी या कुछ और हो गया ना, या बिल्ली होगी, हमें बहुत कम दिखते हैं। बट रोड के ऊपर या साइड में पड़ा हुआ एक कुत्ता ही हमें क्यों मरा हुआ दिखता है? क्योंकि वो डॉग जो होता है ना दोस्तों, वो कभी भी डिसीजन मेकर नहीं होता। वो हमेशा अपनी लाइफ को लेके क्या रहता है? कंफ्यूज। समझ रहे हो? तो उसे नहीं पता होता कि उसको रोड क्रॉस करना है या नहीं करना है। उसे पता होता है कि उसने रोड क्रॉस करना है, बट जब सामने से कोई हॉर्न या कोई गाड़ी वाला हॉन्क करता है ना, तो वो अपना डिसीजन ना साथ की साथ बदल के वो पीछे मुड़ जाता है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। लाइक कभी भी वो अपना रोड क्रॉस नहीं कर पाता, और ज्यादातर वही हमें दिखेंगे रोड के ऊपर कि वो डिसीजन मेकर नहीं होते। समझ रहे हो? तो दोस्तों, आज हमने एक डिसीजन क्या लेना है कि हम अपनी लाइफ के अंदर सोचिए जरा। अगर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ दोस्तों, मैंने अपना नाम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैंने इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन ना लिया होता, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, लाइफ। जसप्रीत सिंह की लाइफ क्या होती? सिर्फ और सिर्फ मंथली 20,000 पे, ठीक है। 12 महीने काम किए, कितने हो गए जी? 20,000 काम करके 2,40,000 पे, है ना। 2,40,000 पे। एक साल मैंने काम किया, 2,40,000 पे मैंने साल का कमा लिया। और 2,40,000 पे एक साल का कमाने के बाद मेरी पॉकेट में या मेरी सेविंग्स कितनी होनी थी दोस्तों? आप सारे समझदार हैं। मैंने 2 साल काम किया, 2 साल काम करने मतलब 24 महीने काम किया, कितनी सैलरी के साथ? 20,000 की। वैसे 20,000 की सैलरी आज के टाइम पे लेना बहुत मुश्किल है ना। 100 से कुछ लोगों को ही, 10 लोगों को ही 20,000 की सैलरी मिल रही होगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4,80,000 पे, मेरा मैथ वीक है तो अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है जी। बट 4,80,000 पे मैं 2 साल के अंदर कमाता। समझ रहे हो? तो 2 साल के बाद मेरी पॉकेट में कितना पैसा होना था? कभी भी मैं अपनी ड्रीम कार ले पाता? कभी मैं अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंच पाता? कभी मैं अपना ड्रीम हाउस बना पाता? कभी मेरे पास जो मुझे फ्रीडम चाहिए, किस चीज की? मुझे चाहिए टाइम की फ्रीडम। क्या मेरे पास होती? क्या मेरे पास लाइफ में सिक्योरिटी होती? क्या मेरे पास पैसिव इनकम होती? मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नहीं। आप सोच लीजिए, अगर मैं ये जॉब कर रहा होता तो ये सारी की सारी चीजें मेरे पास नहीं होती। ना मेरे पास ड्रीम कार होती, ना मेरे पास ड्रीम इनकम होती, ना मेरे पास ड्रीम हाउस होता, ना ही सिक्योरिटी होती, ना ही पैसिव इनकम होती। तो अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, सिर्फ मैं अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज के साथ जी रहा हूँ। समझ रहे हो? मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड जरूर होता, वो क्रेडिट कार्ड का बिल मेरी सैलरी आने पे सारा का सारा मैं पे कर देता, फिर से मैं अपनी लाइफ को क्रेडिट कार्ड से चलाता। जब मेरे पास सैलरी आनी, फिर मैंने इसका पे कर देना, उसके बाद पे करने के बाद अपनी लाइफ को किसके साथ चलाना? क्रेडिट कार्ड के साथ। सो ये मेरी पूरी की पूरी लाइफ बीत जानी थी दोस्तों ऐसे ही। शायद अगर आप लोगों ने आज डिसीजन ना लिया तो आपकी भी लाइफ सेम एज इट इज ऐसी हो सकती है। बट मैं आशा करूंगा कि हम सारे समझदार लोग हैं और समझदारी दिखाएंगे। बट इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग, आज काफी सारे दोस्त होंगे जो नोवस कस्टमर होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, उसके बाद सुपरवाइजर्स होंगे, असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी होंगे
जो यहाँ पे नोवस कस्टमर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग किया है, 5,000 की बिलिंग करवाई है, 1-2 हज़ार की बिलिंग करवाई है या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें लाइफ के अंदर एक बार क्या देनी पड़ती है, टर्नओवर, ठीक है जी। वो आपको बताऊंगा मैं टर्नओवर क्या होती है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर 2cc का बिजनेस करना होता है। शायद आपको सीसी में मैं आपको समझाऊंगा आगे। यहाँ पे 2cc करने पे आपको लेवल मिल जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और 25cc करने पे हमें लेवल मिल जाता है सुपरवाइजर का, और 75cc करने पे हमें लेवल मिल जाता है असिस्टेंट मैनेजर का, और 120cc का लेवल करने पे हमें जो लेवल मिलता है वो हमें मिलता है दोस्तों मैनेजर। मतलब यहाँ पे जो लेवल है वो ड्रीम लेवल है, समझ पा रहे होंगे आप शायद। इसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई थी। तो बस इससे पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे को मैनेजर बनना था तो उससे पहले मेरे को एएम बनना पड़ा, उससे पहले मुझे सुपरवाइजर बनना पड़ा, उससे पहले मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ा। तो मैंने भी समझ के देखिए दोस्तों, एक टाइम पे 12 नंबर की 910005343211 ये वाली आईडी नंबर मैंने भी आज से 5.25 साल पहले मेरी आईडी नंबर है, मैंने भी फिलअप किया था, ठीक है। और आज आप देख सकते हैं मेरी लाइफ कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आज यहाँ पे आप नोवस कस्टमर हैं, मतलब सिर्फ कंपनी के लिए आप कस्टमर्स हैं। अगर आप यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर आना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको लाइफ में वन टाइम क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2cc की टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ेगी। 2cc क्या है उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सीसी का मतलब क्या है दोस्तों, आपको शायद सीसी नहीं पता होंगे, सीसी मैं बता देता हूँ। सीसी मीन्स कॉमन करेंसी, ठीक है जी। सीसी मीन्स कॉमन करेंसी। लाइक कोई भी प्रोडक्ट है अगर हमारा, अब आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट सेलिंग। आपको लग रहा होगा प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी जी, ये होगा वो होगा। दोस्तों आप गलत हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। बट हाँ, हर एक बिजनेस विदाउट प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है ना। विदाउट प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब विद प्रोडक्ट होता है कोई भी बिजनेस। अंडरस्टैंड करें, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो ये मैकबुक है, चाहे वो पानी की बोतल पड़ी है, चाहे ये पेन है, चाहे ये कॉपी है, कुछ भी है, ये प्रोडक्ट है किसी भी चीज का, राइट। तो कोई भी बिजनेस किससे चलेगा, आपका प्रोडक्ट के साथ चलेगा। तो हमारी कंपनी के पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स आज के नहीं है, 44 साल से हमारी कंपनी रनिंग सक्सेसफुल है, और आपको पता है कि 160 प्लस कंट्रीज के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है, और हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हैं, है ना, दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी हैं। और मान लीजिए हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट हमने अपनी आईडी से बाय किया, आपकी आईडी बनी होगी शायद, और उस आईडी से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो आईडी से मान लीजिए आपने एलोवेरा बाय किया, ठीक है, अपनी आईडी से एलोवेरा बाय किया, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 102 पॉइंट्स हो गए, उसके बाद एलोए लिप्स हो गया, ठीक है जी, उसके हमारे 16 पॉइंट्स हैं, राइट। हनी की अगर मैं बात करूं तो उसके भी अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, 105 है। ऐसे करते करते जब हमारी आईडी में 1000 पॉइंट हो जाता है, 1000 पॉइंट का कितना सीसी हो जाता है जी, 1cc। तो सिंपल सी बात है, 2000cc के 2cc हो जाएंगे, मतलब हमारा जो लेवल है वो कौन से लेवल पे है, 2cc पे है। तो हमने अपनी आईडी में लाइफ में वन टाइम कितने पॉइंट्स करने हैं, 2cc का बिजनेस करना है, ठीक है जी। तो 2cc का बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल सा क्राइटेरिया दोस्तों, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको 2cc करने के लिए, अब आप ये मत समझना कि आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पे कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपको कोई भी किसी तरह का फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको करना ही करना है। दोस्तों चॉइस इज योर्स, आपको लाइफ बनानी है, ड्रीम पूरे करने हैं, तो हमारे पास प्लान है, ठीक है। अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, अपने एम्स को पूरा करना चाहते हो, तो वी हैव अ प्लान, और दुनिया का बेहतरीन प्लान है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली जी सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इसी प्लान के साथ अपनी लाइफ को चेंज किया है, और मेरे टीम्स के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 60 से भी ज्यादा लोगों को मिलीनियर बनाया है। मैंने नहीं बनाया, एक्चुअल के अंदर ये कंसेप्ट इस तरीके का है कि ऑटोमेटिकली जो बंदा इस सिस्टम के अंदर जुड़ता है,
वो ऑटोमेटिकली क्या है लाइफ में कामयाब होना शुरू हो जाता है, राइट। सो अंडरस्टैंड करना क्या है आप लोगों ने कि टर्नओवर क्या है। टर्नओवर आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। कोई भी चीज है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। जॉब के अंदर क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है ना। बिजनेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, टर्नओवर, आपको शायद पता होगा। जॉब के अंदर आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, सर्विस देनी पड़ती है, और बिजनेस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, टर्नओवर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे, याद रखना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो दोस्तों, बिजनेस कर रहे हो। जब तक आपको, मान लीजिए आपने कोई शॉप खोल लिया, किसी भी तरह का आपने शॉप खोल लिया, अगर आप उसमें टर्नओवर क्रिएट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। सिंपल सा फंडा, समझ रहे हो ना। सिंपल सा फंडा क्या है, जब आप उस शॉप के अंदर टर्नओवर क्रिएट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। उस प्रॉफिट के लिए आपको टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ेगी। सो सेम एज इट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी क्या है, बिजनेस है। उसके अंदर भी आपको प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। टर्नओवर क्या है, टर्नओवर जैसे कि कोई भी कंपनी है, मैं आपको एक कंपनी के जरिए समझाना चाहूंगा कि जब मैंने ये गाड़ी बाय करी, एक दिन के अंदर 2 गाड़ियां ना, 2 कार्स हमने यहाँ पे बाई करी, मैं और मेरी सिस्टर ने, और 8.5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो 2 गाड़ियों की अगर मैं बात करूं, 17 लाख रुपए की गाड़ियां होगी, ठीक है। 17 लाख रुपीज की गाड़ियां होगी। जब मैंने गाड़ी ली तो मैंने सेल्स मैनेजर से जाके बात करी कि सर इस तरीके से आप गाड़ियां सेल कर रहे हो तो आपको कितना कमीशन मिलता है। तो वो बोले कि एक कार के ऊपर मुझे 10 मतलब मुझे पूरे मंथ का क्या करना होता है, टर्नओवर क्रिएट करना होता है कि टोटल मुझे कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम कितनी गाड़ियां सेल करनी है, 3। तो 3 गाड़ियां अगर 10 लाख रुपए की हैं तो 30 लाख रुपए की वो बंदा क्या कर रहा था जी, टर्नओवर क्रिएट कर रहा था, 30 लाख रुपीज की। उसकी इनकम की मैं बात करूं, 14,000 रुपए की वो इनकम थी, और 10,000 रुपए उसको इंसेंटिव मिलता था गाड़ी सेल करने का। मतलब 24,000 रुपए कमाने के लिए वो जॉब वाला इंसान, ठीक है ना, जॉब वाला बंदा जहाँ पे वो गाड़ियां सेल कर रहा है, ठीक है। हाँ, वो पहले कह रहे थे कि मेरी 28,000 रुपये इनकम होती थी, बट उसके साथ मेरा एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी होता था, बट कोरोना की वजह से वो 14,000 रुपये की इनकम है। मैंने भी उस टाइम विश्वास नहीं किया था, बट हाँ उसने मुझे अपनी रिसिप्ट वगैरह दिखाई। तो 28,000 रुपये उसकी पहले थी, बट कोरोना के काल की वजह से आज वो टोटल 24,000 रुपये कमा रहा है। बट कंपनी को प्रॉफिट कितना दे रहा है महीने का, 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए की वो टर्नओवर क्रिएट करके दे रहा है। 30 लाख रुपए की टर्नओवर दोस्तों, 30 लाख रुपए की, सोच के देखिए। मैंने यहाँ पे आपको 30 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की, या 1 लाख रुपए की, या 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर क्रिएट करने के ऊपर नहीं बोला, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पर आपको सिर्फ बोला है कि आपको फर्स्ट प्रोडक्ट्स को यूज करना है। प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, आपने यूज करने हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्यों यूज करने हैं। तो ये दोस्तों टर्नओवर होती है, हर बिजनेस के अंदर आपको टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे अगर बताऊं कि आपको प्रोडक्ट यूज क्यों करने हैं, ठीक है। लाइफ में वन टाइम आपको 2000 पॉइंट्स अपनी आईडी में जनरेट करने हैं, 2cc हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। आपको मैंने पहले ही बताया 2000 पॉइंट से आपके 2cc हो जाते हैं, और 1cc अप्रोक्सीमेटली 16,500 में हो जाता है, और 2cc आप मान के चलिए 33,000 के अंदर हमारे 2cc हो जाते हैं। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर एक बार 33,000 की टर्नओवर क्रिएट करनी है, ना कि इन्वेस्टमेंट। समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, टर्नओवर क्रिएट करके देना है। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि टर्नओवर कैसे होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कंपनी का सिंपल सा फंडा है, वो कहती है कि पहले यूज करें प्रोडक्ट्स। आपको बिलीव होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, किसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज छोटी सी बताता हूँ, ठीक है, आपको शायद काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस चीज से, है ना। वो क्लियरिटी क्या है, आप समझ के देखिए। आप मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई 20 साल का होगा यहाँ पे, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का। मैं एक एवरेज इनकम, एवरेज एज लगा लेता हूँ कि सारे 25 साल की एज के यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, मार्केट का टूथपेस्ट यूज किया जी, ठीक है। अब मार्केट का टूथपेस्ट कितने का आएगा, 100 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। आपने मार्केट का एलो लिप्स यूज करी, ठीक है ना, जो हम लिप्स पे यूज करते हैं, एलोए लिप्स, वो कितने की आएगी दोस्तों, वो 200 रुपए की होगी शायद, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपने मार्केट में सोप यूज किया होगा ना, सोप, कोई भी सोप ले लीजिए आप मार्केट का,
अच्छा कोई छोटा मोटा अगर आता है तो 50 रुपए से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने कोई क्रीम यूज करी होगी शायद, है ना, वो भी कितने की होगी, तो 200 रुपए की वो क्रीम होगी। शायद आपने कोई स्क्रब वगैरह यूज किया होगा, ठीक है, वो भी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वो भी 200-300 रुपए का होगा शायद, है ना। तो आप ये मोस्टली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कितने साल से, 25 साल की एज से, 25 साल की एज से आप क्या कर रहे हो, ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो आपने महीने का कितना खर्चा कराया, 300 और 350, टोटल आपका जो खर्चा हो गया यहाँ पे 650 रुपए, 700 रुपए मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल आपका जो खर्चा है 700 रुपए का आ गया, ठीक है। 700 रुपए का आपका खर्चा हो गया, ठीक है जी। अब मैं अगर फॉरएवर की बात करूं, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, ठीक है, फॉरएवर का भी अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हो, अब मैं आपको पहले बता दूं, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, बट आपको अभी महंगे लगने वाले हैं दोस्तों। आईफोन की अगर मैं बात करूं, कितने का है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। मार्केट में 300 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी आपको, कौन सी, टॉमी की, बट वही टी शर्ट अगर आप शोरूम में जाके लोगे तो 3,000 रुपए की मिलेगी। मतलब ऐसी कॉपीज बहुत बनती हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। अगर मार्केट का टूथपेस्ट 100 रुपए का है तो हमारा 400 रुपए का है, ठीक है जी। अगर मार्केट की एलो लिप्स 200 रुपए की है तो हमारी कितने की है, ये भी 200 रुपए की है, ठीक है। सोप की अगर मैं बात करूं तो हमारा 350 रुपए का सोप है, ठीक है। क्रीम की अगर मैं बात करूं तो हमारी क्रीम 700 रुपए की है। अगर मैं स्क्रब की बात करूं तो स्क्रब भी हमारा 700 के करीब है। कितना हो गया जी, आप यहाँ पे देख लीजिए, 700 700 कितना हो गया, 1400, 1400 और 400 कितना हो गया, 1800, 1800 और 200 कितना हो गया, 2000, 2000 और 350 कितना हो गया, 2400। आप 2400 मान लीजिए, 2400 में से आप माइनस कर दीजिए इसको, मतलब 2400 में से आप माइनस कर दो 700, तो कितना बचेगा, आई थिंक 1700, है ना। तो 1700 रुपए आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, मतलब आप मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप 700 रुपए के ले रहे हो, और वही प्रोडक्ट्स आपको जो 700 के मिल रहे हैं वो 2400 रुपए के मिल रहे हैं। आपने मतलब 1700 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए रेदर देन मार्केट से, है ना, आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, आपको लग रहा होगा। बट दोस्तों आप सोच के देखिए, आप 25 साल से ये प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, बट ये वाले प्रोडक्ट्स ने कभी भी आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया, कभी भी ये वाले प्रोडक्ट्स ने आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया। लाइफ में वन टाइम अगर आप 2cc का बिजनेस कर देते हो, वो टर्नओवर क्रिएट कर देते हो, तो ये वाले प्रोडक्ट्स आपको आपकी फैमिली का क्या बना सकते हैं, मिलीनियर। आप यहाँ पे लखपति बन सकते हो, आप यहाँ पे एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आपके पास टाइम भी होगा, आपके पास फ्रीडम भी होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर किया था। ड्रीम कार, ड्रीम इनकम, ड्रीम हाउस, ड्रीम टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम। पैसिव और एक्टिव इनकम क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम शायद आपको मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा यहाँ पे, है ना। एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, जब आप सर्विस देते हैं तो आपको वो एक्टिव मिलती है इनकम। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसकी आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, मतलब आपको उसका पैसा मिलता है। अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो तो पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर मेरी जो इनकम आई थी वो सिर्फ 640 की थी, बट मैं आपको लिटरली अभी बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको शायद अभी विश्वास नहीं होगा, तो वो अभी आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं लेटेस्ट अपनी इनकम दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे लास्ट 2 मंथ्स की इनकम है, और वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1 मिलियन इन जस्ट 2 मंथ्स। और ये जो मेरी इनकम है ये 4,99,386 रुपए, ये मंथ कौन सा है, मई मंथ का है, ठीक है जी। और जून मंथ की आप इनकम यहाँ पे चेक कर सकते हो, 5,29,872 रुपए,
आप यहाँ पे टैक्स कितना मैंने पे किया, 26,493 रुपए का मैंने ऑन द स्पॉट टैक्स पे कर दिया। और यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे आने थे, 5,03,368 रुपए। मैं आपको यहाँ पे अपनी 5 लाख ये वाली अमाउंट को शायद याद रखना, 5,03,378 और 88 पैसे, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट लिया, मेरे 15 तारीख को मेरे अकाउंट में जो इनकम आई थी दोस्तों, ये देख लीजिए। डियर कस्टमर, योर ICICI बैंक अकाउंट 020 हैज बीन क्रेडिट विद INR 5,03,378 रुपए पॉइंट 88 पैसे, ठीक है, 15 जुलाई 2021 को। और कहाँ से आए हैं, कौन से बैंक से आए हैं, HSBCN बैंक है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग से आए हैं। आप देख सकते हो कि कंपनी ने 88 पैसे भी मुझे यहाँ पर दिए हैं, 88 पैसा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये मैंने 2 मंथ के अंदर ये वाली इनकम दोस्तों, ये वाली इनकम सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर आई है, सिर्फ 2 मंथ। सोच के देखिए एक बार, अंडरस्टैंड करके देखिए। और मैं आपको यहाँ पे अपनी पहली इनकम दिखाता हूँ। सबसे पहली इनकम ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोनस 2015। अब बोनस 2015 की सारी मेल्स आ गई, 15 की सारी मेल्स आ गई। और यहाँ पे देखिए नवंबर 2015 की मेरी मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था, डियर जसप्रीत सिंह, ठीक है। ये मेरा नवंबर 2015 का जो पे आउट है वो कौन सा है, 640 रुपए, ठीक है ना। 640 रुपए हम मेरे अकाउंट में उस टाइम पे भी आए थे। तो ये मेरी लाइफ की पहली इनकम थी। एंड लिटरली बताऊं तो मुझे ये इनकम देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि हाँ, कुछ अगर 640 मुझे कंपनी दे सकती है तो 6,40,000 रुपए भी मुझे ये कंपनी दे सकती है, राइट। सो दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, है ना, कि किस तरीके की यहाँ पे इनकम है। मैंने आपको अपनी वीडियोस भी दिखाई हैं और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बस आपको लाइफ में वन टाइम क्या करना है, एक 2cc का टर्नओवर क्रिएट करके देना, ठीक है। सिर्फ 2cc का क्या करना दोस्तों, टर्नओवर क्रिएट करके देना है। और अगर आप लाइफ में 2cc का टर्नओवर क्रिएट कर देंगे तो आपकी लाइफ इस तरीके की हो सकती है। जब मैं स्वीडन में गया था, इंटरनेशनली घूम के आया था, फॉरएवर की तरफ से मुझे यहाँ पे घूमने का मौका मिला था। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जब मैं स्वीडन गया था कंपनी से। मैं नहीं, मेरी पूरी की पूरी टीम, ठीक है, जो मेन लीडर हैं, हम सारे के सारे वहाँ पहुंचे, ठीक है। मुझे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का मौका मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अगर मैं इन लेडीज की बात करूँ तो ये लंदन से थे, ठीक है। इनको 20 साल हो चुके हैं फॉरएवर में काम करते हुए। नाइजीरिया से कुछ लोग हैं, देख लीजिए, फॉरएवर प्राउड। बहुत कुछ है दोस्तों दिखाने के लिए, बहुत कुछ, ठीक है। बट अगर आप कहते हैं ना कि जिसने डिसीजन लेना वो डिसीजन ले ही लेता है, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। सो दोस्तों आज आपको क्या करना है, 2cc का बिजनेस करना है। अब ये समझ लीजिए कि मार्केट में आपको छोटी सी शॉप खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई भी शॉप आपने खोलनी है, कोई दुकान खोलनी है, तो ये समझ लो अगर आप रेंट पे भी ले रहे हो, ठीक है ना, 50,000 पे आपको, मान लीजिए 25,000 पे आपको वहां पे रेंट देना है, ठीक है। 25,000 पे आपने क्या किया जी, वहां पे सिक्योरिटी दी, तो मतलब टोटल आपको 50,000 पे ऑन द स्पॉट देना पड़ा, ठीक है। कम से कम अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो 2 लाख रुपए का आप क्या करोगे, स्टॉक रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 से 4 एम्प्लॉइज होने चाहिए। उसके बाद 24 घंटे 7 दिन आपको वहां पे टेंशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये समझ लीजिए कि 3 से 4 लाख रुपए आपके लग जाते हैं छोटी मोटी शॉप खोलने के लिए, छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए। बट ये देख लीजिए दोस्तों, 44 साल पुराना बिजनेस आपको सिर्फ और सिर्फ एक 2cc करने से मिल जाता है। अब 2cc के बाद की इनकम की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक छोटा सा एक रोड मैप दे देता हूं, ठीक है। रोड मैप क्या है, अगर आप 2cc कर लेते हैं, ठीक है जी, 2cc कर लेते हैं, तो 2cc करने के बाद आपको इनकम कैसे जनरेट होगी शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 50 लोग जानते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 50 लोग। ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कितने लोग मना कर जाएंगे बिजनेस के लिए, 40, 44 या 48, है ना।
मैं कहता हूँ 40 लोगों ने मना कर दिया, 44 ने कर दिया, 48 लोगों ने मना कर दिया 50 लोगों में से। मैं कहता हूँ सिर्फ 2 या 3 लोगों ने, सिर्फ 2 या 3 लोगों ने आपको यस बोला है ना। मैं आपको प्लानिंग दूंगा, आपने क्या करना है, डेट फाइनल करनी है, ठीक है ना। डेट फाइनल कर दीजिए आज, चाहे आप आज की आज करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 20 को कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 21 को कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 3 दिन के अंदर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अगर जो भी बंदा 3 दिन के अंदर करेगा, ठीक है, उसको मैं पर्सनल प्लानिंग दूंगा कि 15 से 20 हजार रुपए वो अगले 9 दिन के अंदर कैसे कमा सकता है। क्लियर। सो दोस्तों, जो बंदा ठीक है दोस्तों, सो आज कल या परसों डेट फाइनल कर लीजिए कि आपने कब अपने लेवल को कंप्लीट करना है। एंड मैं आशा करूंगा कि आज की ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं अभी सिर्फ 2cc तक मैंने बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 2cc तक का, ठीक है जी। 2cc सुपरवाइजर कैसे बनना है, एएम कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है। यहाँ पे आप अगर इनकम की बात करूं तो यहाँ पर 2cc जो करता है वो मंथली 7,000 से लेके 15,000 तक कमा सकता है, ठीक है। सुपरवाइजर पे 20,000 से 25,000, और असिस्टेंट मैनेजर पे 30,000 से 35,000, और मैनेजर से 60,000 से लेके नो लिमिट्स है। डिपेंड करता है दोस्तों आपको क्या करना है, अब चॉइस आपकी है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिसीजन आपका होगा, चॉइस आपकी होगी। और कोई चाचा मामा ताया आपकी लाइफ में आके कोई भी आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं करेगा। सो देख लीजिए एक बारी फिर से, ठीक है। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप अपनी डेट फाइनल करें, आशा करूंगा कि आप समझदार होंगे अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।